जो वहां से भाग निकला था, AK-47 मिल गया, आई एम सो हैप्पी कि यार मिल गया मेरे को टेरेन, मेरे को पता है मैं हिल पे चढ़ रहा हूँ, मैं तक कि यार कुछ हो रहा है जब तक घातक तेरे पास नहीं पहुंचता है। जय हिंद सर। जय हिंद सुनील, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, डूइंग वेल। सर, लास्ट दो एपिसोड में हमने बात किया कि कैसे 20-21 साल के यंगस्टर्स उनको ट्रेन किया जाता है और ऑफिसर बनाया जाता है टू लीड ट्रूप्स इनटू द बैटलफील्ड। अब की बार लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू द बिगर पॉइंट, दैट इज ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। जी, तो कैन आई आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन दैट इज कि आपका पहला मेजर ऑपरेशन क्या रहा? हाउ डिड द इंटायर ऑपरेशन अनफोल्ड? सुनील ऑपरेशन से पहले जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ उसका टेरेन जानना बहुत जरूरी है। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड कर्बी आंगलोंग इन इन अपर असम। वहां पे क्या मल्टीपल इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं वहां पे, मल्टीपल ऑफ दम। एंड उनका ये एक, प्रॉब्लम जो है सर, ये न्यूज में काफी रहता है। हाँ जी, हाँ है जी ना। सर। एंड उनके साथ ऑपरेट नो ऑपरेटिंग अगेंस्ट देम कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज वहां पे, कि आपको जानना, ये जानना जरूरी है कि टेरेन का जो लोकेशन एंड टेरेन जो द वे इट इज स्प्रेड आउट है ना, इट्स नॉर्मली क्या है, स्मॉलर स्मॉलर पीक्स होते हैं एंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉरेस्ट एंड एंड देन वेरी 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 डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि वहां पे वन इज इट्स इधर ह्यूमिड and it's raining all the time. Most of the time it's raining. And then there are no ways to ingress. अंदर जाना बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. Coupled with that, you have all the time leeches there, the so-called tiger leeches. हाँ सर। And then each of those places में क्या होता है, when you go deep into the jungles, वहां पे छोटे छोटे hamlets होते हैं. And most of the informers उनके जो बैठते हैं ना hamlets में होते हैं. And the so-called overground workers, उनके जो sympathizers जो बहुत होते हैं. So knowing all of this is very important. तो हमारे साथ क्या हुआ था, we captured one of the insurgents जो वहां से भाग निकला था. We captured him and then somehow we gained hardcore intelligence and we started meticulously planning. In this particular operation, I was the second lead, the second in command थे, and उनके नीचे I was the second lead and thereafter my youngsters were operating. तो एक हफ्ते पहले हमने क्या किया, we sent one of the juniors who went to set up the observation post. He went exactly about a week prior, complete ration ले जाके he stood there and then all he had to do is keep monitoring the movements. क्या movements आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कौन जा रहा है, what's happening, and he would send all the situation report जो होता है, he used to keep sending us back. And on the D-Day, we had to go to this particular location, under the cover of darkness. Typically क्या होता है ईस्ट में, by 4:10 first light, है ना. So before, if you have to reach by 4 and get into the operation, in fact if you have to go and raid that particular place, then you have to reach somewhere around 3:30 3:40 पहले पहुंचना पड़ता है, so that you can deploy all of us. Deploy करो, then put your stops and cut off करो, all that. So we had to plan in minute of details. Absolutely. हाँ जी सर। Then that particular day we started late in the night, and unlike जो हम जितना भी प्लान करो ना, टेरेन हैज इट्स ओन सरप्राइजेस. Absolutely. तो क्या हुआ कि हम लोग चलते गए all through the night we were walking, all through the night वहां पे we were walking. But what happens is any village we pass by, तो उनको पता लग जाता है कि there's some movement of troops happening. Normally street dogs जो होते हैं ना, they are the ones. One dog starts barking and everyone knows to come कि यार इनका surprise is gone. So you have to take care of all of this. Somehow we managed to, but then it took us almost 17 hours of walking, 17 hours of by my watch, and it was around 4:30 or 4:30 I suppose. First light, Sure. it just starts off, and then we were not too sure whether he's taking us to the right place or not. अब क्या हुआ, since we are taking an insurgent who जो अपना जो पोस्ट छोड़ के भाग गया था, it can always be a double-edged weapon. Either it takes you to the right place or he can take you into an ambush. बिल्कुल सर।
No, so you can also be a victim there. आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का ये एक पिक्यूलियर हैबिट है सर, पिक्यूलियर फैक्ट है कि वहां पे क्रॉस एम्बुश काफी होता है। हाँ हाँ, मल्टीपल एम्बुश होते हैं यार। वहां पे क्या होता है, देर आर यू नो, जैसे हमारे जो एम्बुश के मेन पार्टीज होते हैं, उनका जो पार्टीज होता है, देर आर वेरी फ्यू ऑफ देम, यू नो, दे एम्बुश यू। रेस्ट ऑफ देम, वो बाकी को क्या काम होता है, दे कम विद दोस कुकरीज ना, वो आते हैं फटाफट, जो मिला, जो बंदा बच गया उसको सबको काटो, इंक्लूडिंग यू नो गड़ी वड़ी जो भी है, अंगूठा पहन रखा उसको भी काट दो। वॉट एवर इज ऑन द बॉडी दे विल फेच अलॉन्ग विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन रन अवे। And then jungles are so thick, it's very difficult to do an operation. हाँ सर, So एक बार निकल गए हाथ से तो इट्स वेरी बस and you know you can escape from one ambush, आप एक ambush counter कर लो, immediately you have another ambush to deal with. तो you have multiple ambushes to deal with, मतलब कितने counter करोगे आप? There is a place that you will get hit somewhere, so you have to be very careful about this particular place. Then we went almost 4:30 हो गया, first light का time हो गया, and the second in command he called me up, on the radio set कि हो क्या रहा, what's happening, since I was leading the column. तो मैंने बोला सर, he is still telling me कि अभी ये थोड़ा और दूर जाना है, he is slightly confused but he is telling आगे ही है साहब. Then he said do one thing कि we'll all stop here, the complete column will stop here, आप उसको और अपने डेट को लेके आगे निकल जाना, not more than half a kilometer, maybe about 10-15 minutes of distance you cover. उसके बाद यू टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। आपको ये क्वेश्चन किया आपके 2IC ने? हमारे 2IC ने किया। हाँ, सो यू नो देन आई टोल्ड ठीक है मैं निकलता हूँ मैं। देन आई पास ऑन द मैसेज टू माय टीम एंड देन वी मूव्ड अहेड। तो 4:45 4:50 होगा टाइम। बाय देन व्हाट हैपेंस ना, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लाइट एंड इट्स ऑलरेडी ब्राइट देयर, एंड कोई भी बंदा अगर ऊपर कहीं बैठा हो, मतलब आई एम स्टिलिंग ऑफ अ पीक समवेयर कहीं पर, everything will be visible. Sure. And so it's all the more difficult now to maintain the stealth and कि silence maintain करना. So we were going ahead. फिर से दोबारा कॉल आया मेरे पास रेडियो सेट पे कि हो क्या रहा है। I just said give me some more time please. हम लोग यहाँ तक आ गए. I am sure there is something existing. Then he said okay, I give you not more than 10 minutes. 10 minutes is like, it was like luxury for me. Well, in this 10 minutes I have to take a call what to do now. ठीक है। Then we went ahead and incidentally what happened is वहां पे एक नाला है। There are a lot of nalas which are flowing those mountain peaks में, छोटे छोटे नाले बहुत होते हैं। This was slightly bigger and we had to cross the nala around 20-25 times. We're crossing, crisscross किए जा रहे हैं for every 15 minutes we're crossing the nala. Very peculiar it was for me. I told okay, there's something existing. Why are we crossing this so many number of times? I'm sure जो आपकी टीम थी they would have also started to doubt कि ये हो क्या रहा है, why हाँ, are we doing this, और ऑफिसर क्या वो हमें ठीक लीड कर रहे हैं या नहीं, राइट? बिल्कुल होता है। एंड यू नो व्हाट सुनील, वहां पे वी वेयर दिस जंगल बूट्स है ना, नाम के लिए इट्स सपोज्ड टू बी वाटरप्रूफ। वंस यू गेट इनटू द वाटर, एक बार अंदर पानी घुस गया ना, एंड देन यू, एक तो इट्स बिकम वेरी स्लशी यू वॉकिंग, एंड सेकंड इट कैन आल्सो मेक लॉट ऑफ साउंड। बिल्कुल, कच 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 करके आवाज आता है। एंड देन वहां पे क्या होता है, वी ऑलवेज होल्ड द वेपन इन अ रेडी पोजीशन। मतलब इमेजिन वी वॉक्ड अराउंड 17 odd kilometers in that terrain पे, up downs में, holding the weapon like this, your weapon automatically go down, your body can't take so much. बिल्कुल। And every time you have to be, this is how you're pointing, right? This is how you move. And your eyesight, everything fatigue इतना हो जाता है. Then in spite of that we had to go ahead, right? We didn't have too many options. हमने करना ही करना, that was a mission based, so we went ahead. वहां पे what I saw, it might sound very funny, but in that particular location I saw a piece of onion, a fresh onion. Okay. And I said, what? Yeah, telltale sign. I said, what is onion doing here? In that jungle, a piece of onion. Okay, that caught my eye, and now that told my sensors that there's something here, it's close by. And I said, okay, let's move ahead. And I told my troop, मेरे column में मैंने बोला, get ready, there's something. जैसे ready बोला, everyone again. The weapons were down, pointing out, it all comes up. And फिर निकले. Just about 50 meters from that particular point where I saw the onion, there was one small trail which is going up in a hillock. So we went easy, climb, ऊपर गए. वहां पे जाके देखा कि there was one big tree जिसको काट के वहां पे डाल रखा था वहां पे. It was like an obstacle for us.
फिर देखा उस ट्री के पीछे देयर आर स्टेयरकेस कट नीटली. आई न्यू दिस इज द प्लेस. एंड जो जिसको पकड़ के ले गया ना, जो इंटिला मेरा सोच जाता, he just pointed into this one. डरने लग गया वो डर गया तब तक. He knew this is some, no, अभी तो होगा ऑपरेशन एंड anything can happen. And he's not armed also, है ना. Then we went there, we took our positions, and मेरे जो guides थे, you know, then we just looked up, we saw a small bunker, उसमें एक polythene लगा हुआ था. Again we dug down. Okay, then we have to understand कि उसका layout क्या है, कैसा है. On the ground, on the map तो हमने plot किया था, on the ground देखना जरूरी है. Then we just spread out. Then one of my boys said, "Stop. No, what?" I saw one guy coming outside, looks like a sentry. He comes, I could just see the cap of us, you know, the Burmese cap, comes left, right, down, देख के वो निकल गया वो. Okay, this is the place. And then immediately I had to tell my 2IC and get all the columns alerted. Ki, okay, I said target seen. Then the 2IC asked me, what is the target seen? I told, I've seen this moment. And you know how the radio set works. It can give that sound, beep, beep, beep. And that also fear na कि it shouldn't give away the positions. Absolutely. है ना, वहाँ पे कि you know, you have to maintain absolutely. And then I know we are in jungle, but snakes won't make that much enough a sound, right? इतना आवाज आएगा नहीं, तो इतना precision sound तो आएगा नहीं. So what happened is then I told my 2IC कि I've seen the target, I'm going inside. What time was it in the morning, sir? हाँ जी. कितना बजा था उस टाइम? It will be around easily on 5:10 by then, but it was bright. Okay. It was absolutely bright. Then he asked me that do you have a rocket launcher? Then I told no, I don't have a rocket launcher. तो थोड़ा पड़ा मेरे को. I told कि you come for such an operation, you don't have a rocket launcher. I had my own reasoning for why I didn't carry a rocket launcher, but of course. Then I said no. He said no, wait, you will not move ahead जब तक घातक तेरे पास नहीं पहुंचता. You know, he said I'm sending you the घातक. You wait for it. हाँ जी, and घातक वाले तो वैसे ही swift होते हैं ना, एकदम, you know, quick reaction वाले होते हैं. And he said I'm sending them in 10 minutes. 2 years as घातक कमांडर, हमने एक दिन ऐसा नहीं रखा सर जिस दिन रॉकेट लॉन्चर मेरी टीम के पास ना. हाँ बिल्कुल. This is almost like next to your skin. Absolutely. So. But I didn't require a rocket launcher basically. Then it was an order कि जब तक rocket launcher नहीं पहुंचा तेरे पास, you will not move ahead. Sir, before sorry to cut you in here. जी. रॉकेट लॉन्चर का एटलीस्ट JNK में ये काफी माना जाता है सर कि रॉकेट लॉन्चर की एक साइकी है. हाँ. जो टेररिस्ट हैं, द मोमेंट दे सी रॉकेट लॉन्चर, वो 10 LMG लगा हो, AK-47 है, इंसास है, दे विल नॉट फियर. UBGL है, उससे उनको डर नहीं लगता. बट रॉकेट लॉन्चर देखते ही डर लगता है टेररिस्ट को. बिल्कुल. इसीलिए रॉकेट लॉन्चर को राजा भी बोला जाता है. हाँ बिल्कुल सही है. सुन, मेरे लिए क्या था ना कि एक तो डर की बात है, लेकिन वहां पे मैं उसको डिप्लॉय नहीं कर पाता मैं, क्योंकि क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मैंने हिल टेरेन, मेरे को पता है मैं हिल पे चढ़ रहा हूँ मैं, तो एक बैक ब्लास्ट होता है, 45 डिग्री का एंगल आपको चाहिए होता है, तो मैं कहाँ यूज करूंगा. ऊपर से अनलाइक JNK वे स्ट्रक्चर मोर ऑफ कॉन्क्रीट, यहाँ पे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में होते हैं, बैम्बू के बने होते हैं, तो इवन इफ आई हिट इट विल गो थ्रू. फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी, लोग क्या सोचते हैं, रॉकेट लॉन्चर को यहाँ रखो सनी देओल की तरह और प्रेस करो और रॉकेट गया आगे, उसके पीछे 4-5 आदमी खड़े होते हैं. हाँ, मूवी में सनी देओल इधर खड़ा है, पीछे 4-5 आदमी खड़े हैं. वेयरएज पीपल डू नॉट नो कि रॉकेट लॉन्चर का एक बैक ब्लास्ट एरिया होता है. बिल्कुल. जब रॉकेट आगे जा रहा है तो पीछे आग निकलती है उसमें से, रॉकेट लॉन्चर में से, और वो आग अगर पीछे बंदा उसके एंगल में आ गया तो वो बंदा गया, तो आप दुश्मन को तो 1-2 को ही मारोगे, अपने 4-5 बंदे चले जाएंगे. बिल्कुल. सो ना, आपने सही पकड़ा, इसीलिए मैं आई डिडंट टेक माय रॉकेट लॉन्चर. मेरे को पता है कि मेरे को ऑपरेट करना है, एंड रॉकेट लॉन्चर को लेके आप भाग कहाँ जाओ, वेयर कैन यू रन? You cannot run behind taking a rocket launcher. So all you need is small weapons. I mean, AK-47 there was the best weapon for me. Best assault rifle. ठीक है, best. And then of course your pistols होते थे कि अगर close combat कहीं पे हो गया, you have to go further down, use कर लो. So that was my whole idea. But अब orders है, अब करोगे क्या आप, ठीक है? Then as soon as it came, I'm waiting.
उस उसी दौरान मीनवाइल जो मेरे जो स्काउट्स हैं, मेरे जो बडी हैं, बोल रहा साहब निकलो, साहब निकलो, साहब चलो, साहब आप देखा जाएगा तो इस सबको बाद में बता देंगे, चलो साहब। क्योंकि एक अर्जेंसी होता है कि एवरी सेकेंड लास्ट मीन्स यू आर लूजिंग वन ऑफ दोस मिलिटेंट्स। इट कैन हैपन कि सारे भाग जाए वहां से, और दे कैन प्लान अगेंस्ट यू, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। इन द मीनवाइल क्या, ऑल माय जूनियर जो लीड करते हैं उनके कॉलम, दे वर ऑल डिप्लॉयड, वो सब आगे गए हैं, दे पुट द स्टॉप्स एंड दे आर रेडी एंड जस्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर कि फायर कब खुलेगा। यू नो दैट्स द हाईलाइट। उसके बाद एज सुन एज रॉक सॉ द रॉकेट, मैंने दूर से देखा, इट डिडंट रीच मी आल्सो, आई टुक माय चांस, मैंने बोला टू ऐसी को रॉकेट लॉन्चर्स कम, आई एम मूविंग अहेड। आई डिड नॉट इवन वेट फॉर हिम कि तेरे पास आया नहीं आया ना, मैंने बोला रॉकेट लॉन्चर आ गया, दैट्स इट। Even before he could cross check, we were just about to go in, and you won't believe, Sunil. You know, look at this. I was trained, qualified, everything. That particular moment, मेरा जो catch है ना, safety catch, I'm not able to release it. Wow. I'm struggling to open it. You won't believe. You know, I'm struggling to open it. Then मेरा जो, हाँ जी, That is why it is said कि जो आपकी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, आप इतना ट्रेन करते हैं, जैसे ही वॉर शुरू होती है, बैटल शुरू होती है या ऑपरेशन शुरू होता है, समथिंग में गो रॉन्ग। Absolutely, yeah, no, absolutely. Anything can go wrong. You have to be prepared for all this. That is what we are trained for. Immediately, my buddy दयाल देखते साथ क्या हुआ, मैंने बोला ये उसको, मैं उसको सेफ्टी कैच को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ यार, I'm not able to push it down। बोल साहब मेरे को दो, ये जस्ट खट, उसमें भी काफी आवाज निकलता है, खट करके ओपन इट, चलो लेट्स गो। उसके बाद देखो वी जस्ट जैम्प एंड नो, ऐसा लगा कि ना स्प्रिंग्स आए हमारे पैरों में। आफ्टर ऑल दैट वॉक वी वेंट इनसाइड एंड देन उसके बाद तो फायर फाइट शुरू, एंड देन सच अ व्हाट डू आई से, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, वी जस्ट फायरिंग नॉट इन एंड अगेन उसमें भी मैंने से फायरिंग, इट्स ऑल कंट्रोल फायर, इट्स ऑल कंट्रोल फायर। आपको पता है कि आपका टारगेट आपने न्यूट्रलाइज करना है, आपको ये भी पता है कि क्या होता है ना, टिपिकली वंस यू ओपन फायर ना बहुत क्योस होता है कि जो नीचे डिप्लॉयड है स्टॉप्स में उनको नहीं पता कहां से फायर हो रहा है, एंड यू नॉट सिटिंग ऑन योर रेडियो एंड देन आप मोटरलेस नहीं बता रहे हो कि मैं यहाँ से फायर कर रहा हूँ वहां से फायर। फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट कि जो टारगेट देगा मैं न्यूट्रलाइज करना पहले, है ना, एंड देन आपके साथ जो LMGs है ही इज डिप्लॉयड, ऐसा भी हो सकता है क्रॉस फायर ना हो जाए, तो यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली, यू नो, जो सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं सिचुएशन, तो इट हैज टू बी एट दी हाइट कि आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, एंड देन वी डिड, देन वहां से वी डू सम फायर एंड देन कंप्लीटेड द ऑपरेशन। तो जब पहला फायर किया तो दुश्मन आमने सामने था? हाँ, सो फर्स्ट फायर हमारा जो था कि दे हैड सेट अ स्मॉल मचान, हाँ सर, ठीक है, उनका जो सेंट्री होता ना वो बिल्कुल बीच में एक मचान में था, वी न्यू दिस दैट यू नो वी हिट, सो अगेन देयर आल्सो एज सून एज स्प्रिंग अप, आप जो ओपन ग्राउंड में जाते हो देन आपका विजन जो है ब्रॉड हो जाता है, यू हैव टू स्कैन इन अ स्प्लिट सेकेंड कि क्या क्या दिख रहा है आपको, वन, एंड देन हमारा जो ट्रेनिंग में होता है ना द प्राइमरी आर्क एंड सेकेंडरी आर्क, oh that is the time I saw actual and real time primary arc and secondary arc without an instructor behind you to guide कि तूने यहाँ फायर करना है, आपका ओवरलैप यहाँ पे होगा, ये यहाँ फायर करेगा, एंड देन वी हिट दी फर्स्ट वी हिट दैट जो ऊपर से जो उनको जो पोस्ट वाला है वी हिट दैट, एंड देन देयर वर दोस जो नीचे के जो पोस्ट लगे हुए थे along with the ridge line, we started hitting them and then we started moving in, and while moving in also we had to tell others कि हमारा मूवमेंट यहाँ चल रहा है, एंड देन मेंटली अप्रिशिएट करना होता है सभी को कि ना जो हमारे स्टॉप्स पीछे जो कॉलम्स हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, बीच में आपके पास कॉल्स भी आते हैं साहब मैं यहाँ पर हूँ, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मैं वहां ना फायर कर दूं। यू नो क्या होता है कि देयर आर पीपल जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके लिए क्या है कि एस्केप करो ना, फॉर देम इट इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ, बिल्कुल सर, लाइक एनीवन, है ना। तो I saw one of them rolling over and going down in that particular line पे, and then you want to fire, लेकिन वहां पे आपको पता है कि कॉलम्स और नीचे कहीं पर है, so split second, not even split second, you have to take a call whether you want to fire him or you just want to see कि आपकी तरफ कुछ आ रहा मोमेंट आ रहा देखो, and then you see that people rolling down and वो जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसे कट 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 का आवाज होता है, पत्तों को टूटने का आवाज होता है,
वेपन गिरने का आवाज होता है, यू नो। हाँ जी, Did you shoot him? we did. We had to. That was the whole mission, like we had to. So we neutralized a lot of people. हमने बहुत incidents को neutralize किया था. Large cache of ammunitions, weapons, detonators, ration. You know, we had to catch up. The operation is not complete there, if I may say. It's not. It just started for us. You After were all this. back also. Yeah, that is where thing. A lot of people don't understand ना कि जो मूवी वाले जो देख के आते हैं कि ये हो गया उसके बाद तो फिर ना, ऐसा नहीं है. अब भी शुरू होता है हमारा ऑपरेशन. अब भी शुरू होता है कि दैट वी हैव टू एज पर द प्रोटोकॉल्स आल्सो कि ऑल दोस बॉडीज को रैप करके यू हैव टू गो एंड हैंड ओवर द पुलिस स्टेशन. अब आपको पता है कि जितना आपने कवर किया टू कम टू दिस प्लेस, इतना आपने दोबारा कवर करना टू गो बैक टू योर सेफ लोकेशंस, टू योर पोस्ट. 17 आवर्स चल के आए थे. 17 आवर्स बाद चल के आए, ऑपरेट किया, आपने ऑपरेट भी किया है, ऑपरेट किया, to go back the same distance. and now is the challenge कि how do I get back, you know, route out हमारा safely to the post, because अभी you're prone for multiple ambushes. You can be assured कहीं ना कहीं कोई बैठा वहां पे. एक तो क्या होता है गर्म है, दूसरा उनको पता है कि अभी ये इनके ऊपर अटैक हो चुका है, उनका रीइंफोर्समेंट कहीं ना कहीं से आ रहा होगा. ठीक है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेरेन उनका है. They know it better than anybody else. They know better than anyone else. And fourthly, वहां पे कि how can you differentiate between an insurgent and a commoner? I told you ना, बहुत सारे छोटे छोटे hamlets होते हैं, villages होते हैं. In fact, I was about to ask you this. जी आपको सिर्फ पहली बार सिर्फ उसकी कैप दिखी थी. You could जी not see his weapon. जी. How did you make that decision कि नहीं ये इंसर्जेंट ही है and it's not a civilian? You never know. अब वहां पे तो लोग मचान पे वैसे ही रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो. हाँ सुनील, what is about various traditions also, जब उनको अपना मेन घर छोड़ के मचान पे रहने को भी जाना पड़ता है एक महीने के लिए, खेती के लिए भी जाना पड़ता है. So how were you so sure कि ये एक टेररिस्ट ही है या एक इंसर्जेंट ही है? हाँ, अभी क्या होता है ना, दिस इज व्हाट आई कॉल द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस. जब आप जो इंटेलिजेंस लेते हो ना, इट्स हार्ड कोर होता, मतलब यू नो फॉर अ फैक्ट ये दिस पर्टिकुलर प्लेस इज अबाउट insurgents or militants only and not civilians. See, we are one of the most disciplined army. For us, frankly asking me, मैं छोड़ जाऊंगा 4-5 militants को, but I will not go and hit anyone who is not a militant, who is just a civilian. No, we will not do that. I'll go and neutralize the militant again. I'll take that effort. उतना ले लूंगा मैं दोबारा चाहूंगा उसको, लेकिन we will not neutralize any civilians. I think that's the approach of our entire organization. Absolutely, that's why it's called the most disciplined forces. बस टेररिस्ट निकल जाएं, बट किसी बेगुनाह को चोट नहीं लगनी चाहिए. बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए. वहां पे बहुत रेस्ट्रेन होता है ना, we restrain ourselves for doing all of this. कि यार एक मिलिटेंट भाग जाए कोई नहीं, 10 भाग जाए तब भी कोई नहीं, लेकिन एक सिविलियन को कुछ होना नहीं चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं करना हमने. बिल्कुल है ना. सो वन रीजन. सेकेंड, दैट पर्टिकुलर प्लेस, हैमलेट की बात करो, सी टिपिकली विलेज सेटअप का एक अलग तरीका होता है उनको बनाने का. देयर आर स्मॉल रोड होते हैं, स्मॉल पगडंडीज होते हैं, उनका कल्टीवेशन होता है वहां पे, है ना. एंड लॉट ऑफ प्लेसेस वो लालटन वगैरह लगा के बैठते हैं. दिस पर्टिकुलर प्लेस हैड नथिंग. एंड देन आई टोल्ड यू नो कि आप उस नाले को क्रॉस कर रहे हो, विलेज विल नॉट डू दैट. नाले के इस पार होगा या फिर उस पार होगा. It doesn't have to go through up down, है ना. And then क्या होता है, even if they're in the hamlet पे, they always have those neat, cut out होता है उनका, and they keep those steps neatly होते हैं वो लोग, so क्योंकि उनको रोज का आना जाना होता है ना. यहाँ पे क्या, there's no anything, only halfway through you see that there's a cutout for them just reaching to the post, and in between also obstacles है. Any commoner will not do, any villager will not do this. That is a good indicator, one. And second, उस टाइम को अगर विलेजर है, यू विल नॉट कम एंड सी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आप ऑब्जर्व करने नहीं आओगे, आप या फिर अपने काम कर रहे होगे, और यू जस्ट मूव आउट. यू नॉट कम एंड सी एंड गो. So that is a very good indicator. And then putting all this together, इतना बड़ा puzzle जो होता है ना, you have to put this together and you have to take one. And again, second, when I said, जब हम लोग we went on the ground, I saw deployments there.
That is when we opened fire. We saw that machan bana, banda upar gaya. We saw the weapon in his hand. Okay. That is when we opened fire. You know, that is where I speak कि जितना भी rush हो ना, you can still have a restraint. And that has to be done, sir. वही तो differentiate Absolutely. करेगा एक से स्टेट एजेंसी में जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हाँ है, जी, हाँ जी, और टेररिस्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने है। जी, सर आपने एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया कि कैसे आपने ऑपरेट किया और कैसे डिस्टिंग्विश किया एक इंसर्जेंट और एक सिविलियन को, एंड हाउ यू गॉट योर एंटायर टीम बैक। आई एम श्योर आपका जो CIJW का हाँ जी, एक्सपीरियंस है और जो आपका कमांडो कोर्स का एक्सपीरियंस है, जी, यहाँ पे इट वुड हैव कम इन हैंडी, काफी हाँ काम जी, है। हाँ जी, हाँ तो जी। वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन कि CIJW कैसा कोर्स है, कमांडो कोर्स कैसा है, और थोड़ा सा उनमें अगर डिफरेंशिएट कर पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि ऑल ऑफ अस गेट टू नो कि कमांडो कोर्स, इसको मोस्टली सभी जानते हैं कि कमांडो कोर्स क्या होता है। जी, इनफैक्ट जब हम फौजी की बात करते हैं तो पहले ये पक्का देखते हैं कि अच्छा ये कमांडो टाइप है कि नहीं है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। तो कमांडो कोर्स पे मूवीज भी काफी बनी है, हाँ, बट CIJW पे आई डोंट रिकॉल कि कोई मूवी भी बनी है। बट आई पर्सनली फील CIJW इज अ वंडरफुल वंडरफुल कोर्स, और जो ऑफिसर CIJW क्वालिफाई करते हैं, I mean, they've got certain extra amount of amazing skills. So would you like to throw some light on that? हाँ सुनील, डेफिनेटली ऑन अ लाइटर साइड, अगर मेरे को अभी इनविटेशन मिले और समवन कॉल्स मी टू डू अ CIJW, I'll go and do it. You'll go to CIJW. I will. Okay, thank you so much. I love to do it. It's like an officer-like course. When I say officer-like course, उसमें क्या है? We do lot of tactically important thing. Terrain, conditions of terrain. How do you apply yourself in a terrain? आपके पास weapon है, आपको tactics पता है, आपको intelligence पता है, लेकिन application CIJW में मैंने सीखा। Minor tactics की बात करूं, वहां पे क्या है? So counter insurgency. तो insurgency are not militants, they are not hardcore militants. The insurgent मतलब they alienated society over a few decades to take up arms. You know, they don't have an option but to pick up the arms and they go against the state. अपने ही लोग हैं। हाँ, अपने ही लोग हैं, ठीक है। So there was a lot of किसी दूसरी कंट्री ने स्पॉन्सर नहीं किया। नहीं, दूसरी कंट्री ने स्पॉन्सर, अपने ही लोग हैं। Because of certain reasons वो they take up arms. हाँ जी, so no neglect कर रखा उन लोग को, there is no development there, no jobs है, no education है, तो रेबल बन जाते हैं, ठीक है। एंड उसका एक ही तरीका टू गेट देम to help them is to get them the political table. So first and foremost, it is not our role to play this. It's about the state government to play a major role there, state and central. Having said that, now that they picked up weapon, and the state government in some ways can't do anything about it. They have failed to control them. That's when we have president to service. Northeast is one of them. Yeah. And this particular course teaches you how to negate all those requirements in those insurgent prone areas. Both combat and non-combat वाले, ठीक है। So combat में क्या होता है वहां पे? You have to do small operation, precise, concrete operations करना होता है आपको. Then you know, with smaller groups. Let's say search and destroy operation. They teach you in CIJW कि search and destroy मतलब आपको target पता है, आपको room clearance करना है. How will you clear? How will you neutralize without any collateral damages? ठीक है। सेकेंड, यू नो लेट्स से कॉर्डन एंड सर्च, मतलब आपको पता है कि वहां पे, हाँ जी, ये फौजी कुछ एक्रोनिम है, कैसो बोलते हैं, सैडोज एंड कैसोस बोलते हैं वहां पे। तो कॉर्डन एंड सर्च में, हाँ, कॉर्डन एंड सर्च में क्या क्या आपको करना होता है कि वेयर ऑल जो उनकी इनग्रेस रूट है, यू नो बाहर निकलने का रूट है, वहां पे कहाँ का कॉर्डन लगाना है, कहाँ सर्च करना है, यू नो, एंड दैट्स व्हाट दे टीच यू। एंड देन the way they teach you is purely on ground. तो some of the people वहां पे जो एम्प्लॉय होते हैं ना, they are all ex militants होते हैं, ex insurgents, sorry militant नहीं, ex insurgents होते हैं, who have stayed there, who actually operated against the forces, but now they have given up to basic understanding आ गया कि they cannot fight it, that's not the way to do it. Only thing they have to do is they have to have a political settlement. Absolutely. ठीक है, that is where it is. So this is what teach you, and then
In fact, this for particular, this, I would like to make this appeal in case those people are listening, that the only solution to such problems is not to take up arms, but to come to the political table, absolutely, discuss. Discussion is the only solution. आप आज weapon उठा लो, you'll have to drop it either tomorrow or after 10 years or after 15 years, लेकिन एक दिन आपको weapon छोड़ना ही पड़ेगा. You'll have to बिल्कुल come to बिल्कुल. discussion tables. You have to come to the mainstream society. You know, it's a two-way process. Of course, the government also has to do that much for them. You know, that's why they picked the weapon. So the government has indebted to do that. You know, it's a moral responsibility of all of us to help the society to come together. That's why they are, I mean, somebody who's part of government, they should understand that they are government because they have to govern the people. They don't have to rule the people. They have to govern Absolutely. them. It's governance. It's not ruling the people. Correct. Rightly put. And so this is what they teach. And then the weapon they teach is like real time. That is where you learned that, you know, you will hold a weapon without a sling in that. That keeps you all the time ready, all the time chambered, but safe में. So that you जो know, आपने बोला कि वेपन होल्ड करना विदाउट दिस स्लिंग मींस Sling. जो एक पट्टा टाइप no, वो नहीं होता है, आपके पास नहीं होगा, नहीं होता है. आपके पास वो बेल्ट नहीं होगी, आपके बिल्कुल. पास वेपन है, अब और कोई रास्ता ही नहीं, आपको हाथों में ही रखना पड़ेगा. रेडी टू ऑपरेट स्टेट में जाते हैं. Ready to operate. वहां पे मैंने सीखा कि हाउ टू यूज माई राइट शोल्डर, माई लेफ्ट शोल्डर. यू नो, लेट्स से कि फिल्म में दिखाते हैं यार कि समवन कैन फायर लाइक दिस. इट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर जरूरत पड़ गई, यू शुड बी एबल टू टेक ऑन योर लेफ्ट शोल्डर आल्सो. मैं तो राइट हूँ, आई एम नॉट साउथ पा, है ना. हाउ टू यूज इट एंड देन हाउ टू अप्लाई दैट ऑन अ टेरेन. वहां पे जो स्लोप्स हैं, हाइट्स हैं, पीक्स हैं, वेरी शार्प होते हैं वहां पे ना. इफ यू लुक एट दैट ईस्ट वाला जो टेरेन होता है, बहुत शार्प होता है. एंड सेकेंडरी जंगल होते हैं, बहुत सारा बैम्बू शूट्स होता है. एंड देन एवरी किलोमीटर आप अगर क्रॉस करना है विदाउट यूजिंग दी बीटन पाथ, आपने अगर नया, इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स, क्योंकि आपको चॉप करके जाना होता है. यू कांट गो इनसाइड. एंड देन द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग इज दैट द टाइगर लीचेस. हाँ सर. ओह, लीचेस का सर जनरली माना जाता है कि जो भी, चाहे CAJW करो या आप ऑपरेट करो नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में, आपको लीचेस से तो पाला पड़ेगा ही. बिल्कुल. आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट है बिफोर यू एक्सप्लेन कमांडो कोर्स, कि ये लीच का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा विच इज वर्थ शेयरिंग? I don't know. Leeches, like the first thing for any operation, I used to keep at least 10-15 minutes dedicated कि मैं लीच को कैसे संभालूंगा मैं. It used to be like that for me every time. हाँ, of course हमारे भी used to have this quick fix ना, कि हमारा जो देसी इलाज है, पॉलिथीन लो, सॉल्ट भरो और पॉकेट में रख लो, कि सॉल्ट ड्रॉप कर लीच छोड़ देगा. लेकिन उससे पहले जितना डैमेज करना कर देगा वो. क्या होता है ना, लीच, वो जो टाइगर लीच होते हैं जंप करते हैं, आपके ऊपर बैठते हैं, दे स्टार्ट सकिंग, यू डोंट फील इट. अब बिल्कुल फील नहीं करते हो. थोड़ी देर में जाके लगता है कि यार कुछ हो रहा है. देन यू लुक एट कि वहां पे तक खून निकल रहा होता है. इट इज स्टिल सकिंग, और एकदम सा मोटा हो गया होगा आपका खून पी के. एंड हम लोग यूज्ड टू कैरी दोस कुकरी, स्मॉल कुकरीज. सो एंड इट्स वेरी स्लाइमी होता है लीच. यू डोंट फील लाइक टचिंग इट आल्सो. तो कुकरी लो, ऐसे काटो, फेंक दो, काटो, फेंक दो. That's what we used to do. So, but this particular incident I want to share. It's very funny also in some ways. I did a joint training with the US and the French Army when I was doing the the CW course. And जो the foreigners होते हैं ना, yeah, they have the best of weapons, and the best of gadgets उनके पास होता है. और हम होते हैं ना बिल्कुल रॉ. AK-47 मिल गया, आई एम सो हैप्पी कि यार मिल गया मेरे को. नाइट विजन डिवाइस मिल गया, हमारे बड़े वाले नाइट विजन डिवाइस सो हेवी मिल गया. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. उनकी देखना कितना सोफिस्टिकेटेड है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं. एंड फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी ऑल ऑफ दिस. एंड दे विल बोस्ट, वो शो बोटिंग बहुत करते हैं. एंड देन ऊपर से गोरे गोरे होते हैं, टॉल होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, एंड कुछ जो कैमोज बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे मूवी में दिखता है बिल्कुल वैसे ही होते हैं वो लोग. I had operated with I mean not operated, ट्रेन किया था सर US फोर्स के साथ सूरतगढ़ में. तो वहां पे वो लोग टेंट से बाहर ही नहीं निकलते थे जब तक पूरा आइस पैक ना हो उनके पास. बिल्कुल. उनकी वेस्ट में ठंडा पानी ना सर्कुलेट हो रहा हो. तो जब तक पूरा जिंक बैंग नहीं मिलेगा उनको,
जब तक उनको बिल्कुल ये नहीं होता कि बाहर निकल के बाद भी ऑलमोस्ट टेंट लाइक कंफर्ट आपको मिलेगा, वो बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्कुल। जबकि अपने बंदे सर, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, अपना तो सर राइफल उठाया बाहर, धूल चल रही है, आंधी चल रही है जबरदस्त वाली, और जा रहे हैं सर। अगर पानी की भी एक बोतल है हाथ में तो है, अदरवाइज अदर्स है तो है, नहीं तो नहीं, ये रेडी। उनके जो मेस्टिन पे इतना सोफिस्टिकेट होता है, इंसुलेटेड होता है। हमारा मेस्टिन मतलब कभी ढक्कन इस तरफ, कभी नीचे वाला इस तरफ, लेकिन उसमें मजा ही अलग है। और हमारे पास स्पून नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, हाथ से ले लेंगे या फिर वहां पे लकड़ी तोड़ लेंगे, फिर उसमें खा जाएंगे हम लोग। उनका ऐसे नहीं है, दे हैव दो स्पून्स। लकी आई डिडंट सी पीपल कैरिंग टिश्यू पेपर्स, आई एम सो हैप्पी कि वो टिश्यू पेपर नहीं लाए वहां पे। सो व्हाट हैपेंड इज, दिस वाज अ पर्टिकुलर, आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग रेंज पेट्रोल करना था, इट वाज वन ऑफ द ऑपरेशंस। एंड वहां पे एज आई सेड कि बहुत सारे नालियां होते हैं, नो द लॉट ऑफ स्मॉलर स्ट्रीम्स, तो वी हैव टू क्रॉस दोस नाला एंड देन यू हैव टू स्टिल मेंटेन द डिस्टेंस एंड क्रॉस। तो वी क्रॉसिंग, आराम से चल रहे। सो बिफोर वी वेंट टू द ऑपरेशन, जब ब्रीफिंग के टाइम पे आई वाज द एलआरपी का, आई वाज द लीडर, तो मैंने ब्रीफ किया सबको। देन आई सेड कि ये लेना, सब कुछ होना चाहिए। देन ही सेड वी हैव दिस some spray they had, बोलो we have this for leaks, I told do you have this, मैंने पूछा उनसे is it effective, बोलते yeah we have this, बोला ठीक है यार चलो, you say it's effective, carry it, वहां चले गए। then he started screaming. First and foremost you can't screaming giving away a position, and then I get a call कि साहब इधर आ जाओ, साहब इधर आ जाओ। मैंने बोला यहाँ क्या हो गया, we will not even reach that particular place कि कुछ हो जाए, यहाँ पे क्या हो सकता है। and नाले में I had to go and jump quickly, I had to swiftly जाके मैं दौड़ा, मैं jump मारा, and I see this particular Gora standing, and chest पे there is one leech standing and sucking his blood, and the leech is like this and is screaming, he doesn't know what to do, उसने पूरा spray वगैरह सब मार दिया, leech वहीं बैठा। Then do something. Then I spray ineffective निकला, absolutely ineffective. All I did is wait a second, I told don't scream, don't scream. I went नीचे अपना पाउच से वो पॉलिथीन निकाला, took the salt, dropped it, ठक, within a split second the leech, you have seen ना, leech shrink हो जाता है जैसे salt पड़ता है उस पे, और shrink होके नीचे गिर गया वो। and उसके बाद बोलो what did you do? I don't know, I'll tell you later, we have to move forward. बोलते give me that salt. Again I folded the polythene, बोला keep it safely with you, don't lose it, I'll tell you how it has to be used, that's all. So no, लीच का एक तरह का होता है वहां पे ना, इट्स अ फोबिया आल्सो इन सम वेज। और जो लीच का एक्सपीरियंस नहीं कर गया है, मतलब उसका टेन्योर सक्सेसफुल नहीं रहा। इनफैक्ट यार आफ्टर द ऑपरेशन जब आते हैं वापस, एंड व्हेन यू टेक अ नाइस बाथ एंड शावर एंड कम बैक, एंड देन अब डीब्रीफ सब करने के बाद, you still get that nice feeling of putting your hand in Japanese bed, you keep rubbing it. There's a pleasure in that. Only Fauji's will understand what we speak of pleasure. ये जो फ्रेंच ट्रूप्स थे आपके, जी, उसके बाद सॉल्ट को सोते वक्त भी अपने पॉकेट में रखते होंगे, and salt बिल्कुल। would have become a prize commodity. Yes, वापस आके everyone then, and it was हमारा असाइनमेंट बन गया वो कि that polythene में सबको बना के ना, जो रोल करके ऊपर डाल के ना थ्रेड लगा के, उनके पास they will ask for clips and all, हमारे पास कौन सा क्लिप्स है वहां पे यार, we don't have clips, हमारे पास जो रस्सी जो मिला उससे बांध या फिर पॉलिथीन से बांध के पकड़ा दो। So and coming back to this the course, then you have almost 13 ranges होता है फायरिंग के, hilly ranges से लेकर नीचे फायर करने, plunging fire से लेकर, and you do slithering there, it's a nice place, slithering करके आप नीचे आते हो, and you get into room clearance, and then you have those pop-up targets आता है, and pop-up targets also civilians का होता है, and then you have a militant targets, so you have to fire only at the militant target, and it keeps moving, and precision fire होता है वहाँ पे, so that is where I picked all the skills, and then they teach you survival, कि how can you survive in such a terrain. So when I speak of survival, this incident comes to me. आजकल के बच्चे और other the non counterparts of our civilian world, they will not understand what I'm saying. तो वहां पे क्या होता है, जो पानी है, so you collect from the streams, जो मिला नहीं मिला, जो नीचे whatever is accumulated, that is what we call small छोटे से ये होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है। And after the operation, or I think during the operation or after the operation, we were all feeling very thirsty, बहुत thirsty थे। Then all we do is कि कैसे भी जो कैप होता है, जितना भी बॉटल से ले सकते उतना बॉटल में लो, उसको start taking the cap, borrow,
एंड देन क्लोरोक्विन के टैबलेट्स होते हैं, क्लोरोक्विन नहीं, व्हाट इज दैट, जो हम फिल्टरिंग, हाँ वो जो टैबलेट्स होता है वाटर का, उसको डालो. इट्स सपोज टेक हाफ एन आवर टू डिजोल्व फर्स्ट. उसके बाद जितने भी जो गंध है इट ऑल गोज ऑन डिजोल्व होके इट ऑल सेडिमेंट जाके सेटल होता है. देन जो सिर्फ ऊपर लेयर सपोज ड्रिंक, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है. व्हाट यू डू इज पुट द टैबलेट्स, Just shake it. उसको शेक इट, ड्रिंक इट. दैट इज सर्वाइवल देयर. दैट्स सर्वाइवल. Absolutely. व्हाट यू गेट इज, अगर आपको एक वक्त का मील वहां मिल गया, हॉट फूड समवेयर किसी ने सर्व कर दिया, बी मोर देन हैप्पी. It's a luxury. It's a luxury day, and for me, no, that was absolute luxury. कहीं मिल गया, you're happy. If not, I used to prefer carrying more ammunition than rations. Then the food. Absolutely. You know, food you can still, you can still find food in यहाँ पे ना जो रोडन शोडन मिल गया, सब मिल गया. Fruits कभी कभी प्लग कर लिया. Let's say sir survival skills जो CIJW से सीखा. जी. Survival skill की जब बात करो तो कमांडो कोर्स आई थिंक उसकी जो वेटेज है वो काफी हाई है सर. Because it's such a tough course, और सारा course, every minute of that course is about survival, right? It's about escape and evade. No, sir? Yeah, escape and evasion, So, raids. would you like to throw some light on commando course so that everybody understands कि ये course है कैसा सर? Okay, मैंने बताया कि if given opportunity, I'll do CAW. Sir. If you gave me multi millions dollars in dollars, I'll not do a commando course again. It's one of the toughest, in fact rather the toughest, the most dreaded, the most unhygienic. One time but you can do this, because that is where I realized how much I can take. Absolutely. That's where we realize how much the body can take, how much of resilience you have. A 40 days course, complete, it's a very torturous course. पहले क्या होता है कि आप वहां जाते हो, यू आर एन ऑफिसर ऑलरेडी, वहां पे जाके आपके स्टार्स निकाल देते हैं.